Hello and good morning students. So today in this video we are going to do our next poem, that is The Divine Image, written by William Blake. The divine image. What is here mean of divine image? What the poet want to say? What the William Blake want to say through this topic? You can understand through this topic very well that what the poet is trying to say here. आप केवल इस टाइटल से ही समझ जाओगे कि विलियम ब्लैक यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं. Here divine. Divine means, what do you know by divine? To whom we say divine? Divine means related to God. Related to God. And image means akriti. Here image is a person, we can say a person. Here what the poet is trying to say here, the divine image means a person who is related to God, means here the person who has all the four virtues in his life, he is like a God. He is really a son, a true son of God, and everybody treats with him as a God, like a God. What all the four virtues? Mercy, pity, peace and love. And the same thing is trying to say here. Here in this poem William Blake is saying that in our distress we pray to God. And which God? कौन से गॉड को हम प्रे करते हैं? टू हुम वी प्रे? वी प्रे द गॉड हु हैज ऑल द फोर वर्च्यूज, मर्सी, पिटी, पीस एंड लव. Whenever we are in distress, we always pray to God that please show your mercy, show your pity on us, please spread peace in our life, and we need your love. All the four virtues, for that we pray from God. But here the William Blake is saying, if all the four virtues are in a human being, really these all the four virtues are really insist in a human being. A person possesses all the four virtues but he never identify it. एक चारों ये वर्च्यूज जो होती हैं, चारों गुण जो होते हैं वो एक मनुष्य में होते हैं, पर वो कभी इनको आइडेंटिफाई ही नहीं करता. ऑल दीज फोर वर्च्यूज, मर्सी, पिटी, पीस एंड लव, ऑल दीज फोर वर्च्यूज आर इन ह्यूमन बीइंग. ये चारे के चारों जो गुण हैं वो एक मनुष्य में होते हैं, पर मनुष्य कभी उन्हें समझ ही नहीं पाता, वो उन्हें पहचान ही नहीं पाता. अगर वो उन्हें पहचान ले तो वो वाकई क्या है? ईश्वर के तुल्य ही है, और उसकी जो इमेज है वो क्या है? एक ईश्वर तुल्य ही बन जाती है, एक ईश्वर के जैसी ही बन जाती है. और इसी चीज़ को जो है विलियम ब्लैक इस पोएम के थ्रू बताना चाहते हैं. क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेलिंग यू अबाउट द पोएम, व्हाट विलियम ब्लैक इज सेइंग हियर इन दिस पोएम. ब्लैक्स द डिवाइन इमेज celebrates the traditional virtues of mercy, pity, peace and love. Here the Blake is explaining here the traditional virtues. एक परंपरागत जो गुण हैं किस चीज़ के? मर्सी, पिटी, पीस एंड लव. इनके परंपरागत गुण जो है वो बता रहा है. Man possess these virtues, really? Everybody possess these virtues. Every man possess these virtues. In everyone these virtues are in a human being but fails to realize them. But a man can never find out these virtues in herself. वो कभी ढूंढ ही नहीं सकता इन virtues को, because he never try to find, क्योंकि वो कभी कोशिश ही नहीं करता, तो वो ढूंढेगा कैसे? In fact, he is oblivious to the qualities which are inside us. निश्चित रूप से he is oblivious to the qualities. वो इन गुणों से क्या है? परिचित ही नहीं है. Still he is very far away from all these virtues that are in a person, जो एक व्यक्ति के अंदर होती हैं. In this regard, this poem adopt a didactic tone, और इसी संबंध में
Here the poet is saying that this is a poem that is an educational poem. ये एक शिक्षात्मक जो है वो पोएम है जो हमें बताती है कि भी वाकई एक मनुष्य के अंदर क्या गुण होते हैं. Really, what virtues are in a man. Through this poem, the poet is trying to explain. Okay, so let's start doing this poem. The Divine Image by William Blake. What the poet is saying here? To mercy, pity, peace and love. What is mercy? Mercy means daya. Pity, karuna. Daya, karuna. Peace, shanti. Love, prem. Everybody prays for it. To mercy, pity, peace and love. To के लिए, किसके लिए? Mercy, pity, peace and love. All pray in his distress. All pray in his distress. Distress means निराशा. कि हर व्यक्ति क्या करता है? Each and every person prays to God. किस चीज़ के लिए? For mercy, pity, peace and love. That God please show your mercy, pity, peace and love on us. कि हम पर जो है वो अपनी दया, करुणा, शांति, प्रेम जो है वो हमारे ऊपर बरसाओ. And to these virtues of delight, when a person get all these virtues of delight, delight means when God becomes delight. Delight means here happy. When God becomes happy and He shows His mercy, He bestowed His mercy, pity, He give us love, then in the return of it, return their thankfulness. Then in return we give our thankfulness to Him. Means when a person or every person gets all these virtues, means gets all these mercy, pity, peace and love from God, in return when he get all these things with the God's happiness, then in return what we do, we give our thankfulness. Thankfulness means gratefulness, कृतज्ञता. हम अपनी कृतज्ञता देते हैं. I am repeating it again what the poet is saying कि to mercy, pity, peace and love, कि दया, करुणा, शांति और प्रेम. दया क्या होती है? जो हम किसी के ऊपर दिखाते हैं. करुणा क्या होती है? जब हम किसी दुख को देखते हैं हमें बहुत ही क्या आता है? करुणा आती है उसके ऊपर. दया और करुणा दोनों डिफरेंट थिंग्स हैं. क्योंकि यहाँ पर आगे जो है वो कवि बताएगा. हियर इन दिस पोएम फर्दर द पोएट विल से दैट फ्रॉम वेयर मर्सी comes out and where we show our pity. कि मर्सी कहाँ से आती है और पिटी जो है वो कहाँ से आती है. क्योंकि आगे जो है वो बताएगा कि मर्सी यानी कि जो हमारी दया है वो हमारे हृदय से आती है. एंड पिटी, करुणा, हमारे चेहरे के ऊपर नज़र आती है. करुणा का एक चेहरा होता है, वो चेहरे पे उसके भाव चेहरे के ऊपर दिखाई देते हैं. मैं आपको एक इमोजीज के माध्यम से दिखाता हूँ. जैसे मान लो ये इमोजी है एक, और इसके ऊपर हमने इस तरह से जैसे लगा हुआ देखा तो सडनली हमें क्या एकदम से इसको देख करके क्या नज़र आया? हमें देख के नज़र आया कि हैप्पीनेस इज़ ऑन हिज फेस. अब मैं इसको ही क्या करता हूँ, थोड़ा सा यूँ कर दूँ. अब सडनली हमने क्या रियलाइज़ किया कि उसके चेहरे के ऊपर क्या है? सैडनेस है. ये कहाँ आ रही है? चेहरे के ऊपर नज़र आ रही है. पर जब हम किसी के प्रति दया दिखाते हैं, मर्सी दिखाते हैं, तो वो दया चेहरे के ऊपर नज़र आती है क्या? आप जाते हो किसी जो है सपोज दैट यू आर गोइंग एंड यू सी गोइंग ऑन ए वे एंड यू आर सीइंग ए बेगर सिटिंग इन ए वेरी बैड कंडीशन अलोंग साइड द रोड. आप जा रहे हैं और एक भिखारी आप सड़क के किनारे बहुत बुरी हालत के अंदर जो है वो बैठा हुआ है. सडनली यू शो योर मर्सी ऑन हिम. आप अचानक अपनी दया उस पर दिखाते हैं तो आपके चेहरे के ऊपर दया आएगी? यूँ नहीं. आप क्या करोगे? जाओगे, निकाल के पैसा दोगे या उसको खाना दोगे, वट एवर यू हैव यू विल गिव टू हिम, बट इट विल नॉट बी शोन ऑन योर फेस. ये आपके चेहरे पर दिखाई नहीं देगी, ये आपके दिल से निकली है. तो इन्हीं चीज़ों को कहा उसने. तो कहता है कि यहाँ पे पोइट कह रहे हैं, द विलियम ब्लैक इज सेइंग हियर टू मर्सी, पिटी, पीस एंड लव ऑल प्रे इन हिज डिस्ट्रेस. व्हेन एवर ए पर्सन इज इन डिस्ट्रेस, जब कभी भी एक व्यक्ति निराशा में होता है तो वो ईश्वर से प्रार्थना करता है. प्रे मीन्स प्रार्थना करना, कि वो प्रार्थना करता है किसके लिए? दया के लिए, करुणा के लिए, शांति के लिए और प्रेम के लिए. एंड टू दीज वर्च्यूज, और जब उसे ये गुण मिल जाते हैं
ऑफ डिलाइट, बहुत ही खुशियों के साथ में, रिटर्न देयर थैंकफुलनेस, तो बदले में वो क्या करता है, अपना धन्यवाद ईश्वर को देता है। इज इट क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेंजा। फॉर मर्सी, पिटी, पीस एंड लव इज गॉड आवर फादर डियर, बिकॉज, फॉर मीन्स बिकॉज, बिकॉज मर्सी, पिटी, पीस एंड लव इज इन अ गॉड, कि ईश्वर जो होता है, ईश्वर के अंदर ही मर्सी, पिटी, पीस और लव होती है। अर्थात ए गॉड हैज पोजेस ऑल दीज वर्च्यूज, मर्सी, पिटी, पीस एंड लव, दैट्स व्हाई गॉड इज आवर फादर डियर, आवर डियर फादर। कि जब एक ईश्वर के अंदर दया, करुणा, प्रेम, शांति ये सब होते हैं तो तभी वो क्या है, हमारे पिता हैं, पिता के समान है, वो हमारे प्रिय पिता हैं। क्योंकि ईश्वर को हम क्या कहते हैं, अपने प्रिय पिता ही तो कहते हैं। एंड मर्सी, पिटी, पीस एंड लव is man, but if all these virtues are in a man, mercy, pity, peace and love is in a man, his child and care, then he is a child of that God, and God cares his son so much। कि अगर यही मर्सी, पिटी, पीस और लव जो है वो एक मनुष्य में होती है तो वही उसका क्या है, एक सच्चा पुत्र है, A really son, एक वास्तविक पुत्र है। क्योंकि ईश्वर में ये गुण है तो पुत्र में भी तो यही गुण होंगे। तो जब ये सारी चीज़ें एक पुत्र में होती हैं तो वही उसका क्या है, वास्तविक पुत्र है। एंड केयर, और ईश्वर अपनी दया, अपनी करुणा, अपनी चिंताएं, उसकी देखभाल जो है वो करता है, वो उसके ऊपर अपनी दया दिखाता है, अपनी करुणा दिखाता है, वो उसकी परवाह करता है, उसकी अपनी जो कर्तव्य। और इसीलिए एक मनुष्य जो है वो क्या है, उसकी दया का पात्र होता है। क्लियर? आई एम रिपीटिंग ऑल दिस स्टेंजा अगेन। फॉर मर्सी, पिटी, पीस एंड लव, बिकॉज मर्सी, पिटी, पीस एंड लव इज इन ए गॉड, कि जब मर्सी, पिटी, पीस और लव एक ईश्वर में होती है, दैट्स वाई ही इज आवर डियर फादर, इसीलिए वो क्या है, हमारे प्रिय पिता हैं, पिता के तुल्य हैं। एंड मर्सी, पिटी, पीस एंड लव, इट्स अ वेरी इजी पोएम। मर्सी, पिटी, पीस एंड लव, क्योंकि यही मर्सी, यही दया, करुणा, ये शांति, यही प्रेम जो है जब एक मनुष्य के अंदर होता है, व्हेन इट इज इन ए मैन, his child, that one is really a good child, means a true child, we can say a true child of God, वही एक सच्चा पुत्र होता है, किसका, ईश्वर का। एंड केयर, और इसीलिए ईश्वर अपनी दया उसके ऊपर दिखाते हैं। दैट्स वाई द गॉड बेस्टोड हिज व्हाट, मर्सी ऑन हिम। क्लियर? For mercy has a human face, because the mercy has a human face. दया का एक मानवीय चेहरा होता है, यही बात यहाँ पे कह रहा है कि for mercy has a human face, human heart, sorry, कि mercy has a human heart, कि एक मानवीय हृदय होता है। क्योंकि यहाँ पे कवि क्या कहना चाहता है, कवि यहाँ पर ये कहना चाहता है कि जो दया है वो मनुष्य के हृदय से निकलती है, कि एक दया से परिपूर्ण जो हृदय होता है वही जो मानवता से परिपूर्ण जो हृदय होता है वही दया दिखाता है। तो इसीलिए उसने कहा मर्सी हैज़ ए ह्यूमन हर्ट, कि जो मर्सी है उसका एक क्या होता है, ह्यूमन हर्ट होता है। वापस से देखिए क्या कहता है कि फॉर मर्सी हैज़ ए ह्यूमन हर्ट, कि जो दया है उसका एक मानवीय हृदय होता है, क्योंकि दया का हृदय वास्तव में मानवीय होता है। दया से परिपूर्ण हृदय जो होता है वही मानवीय होता है, दया हृदय से ही निकलती है। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि दया मानवता से परिपूर्ण हृदय में जन्म लेती है। दया क्या करती है, मानवता से परिपूर्ण हृदय में जन्म लेती है। पिटी अ ह्यूमन फेस, और आगे जो है वो कवि कह रहा है, एंड नेक्स्ट द पोएट इज सेइंग दैट पिटी ए ह्यूमन फेस, दैट पिटी हैज ए ह्यूमन फेस, करुणा का एक मानवीय चेहरा होता है। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि जो करुणा है वो मनुष्य के चेहरे के ऊपर दिखाई देते हैं, करुणा के भाव मनुष्य के चेहरे के ऊपर दिखाई देते हैं। And love, the human form divine. And the poet is saying here, the love, a human form divine. The love human form divine means प्रेम के भाव जो है वो क्या है, वो देवीय चेहरा लिए हुए होते हैं। क्या कह रहा है कभी यहाँ पे, what the poet is saying here,
द पोइट इज सेइंग दैट अ गॉड, अ लव ऑलवेज इन अ गॉड्स फेस। प्रेम जो है वो ईश्वर के चेहरे में ही होता है, अर्थात जो प्रेम को लिए हुए होता है वो मनुष्य ईश्वर के समान होता है, क्योंकि ईश्वर प्रेम करता है, हर किसी से प्रेम करता है। ईश्वर किसी से घृणा नहीं करते, नफरत नहीं करते। तो वही बात यहाँ पर कही जा रही है। कहते हैं कि एंड लव द ह्यूमन फॉर्म डिवाइन, कि प्रेम का भाव देवीय चेहरा होता है, अर्थात कहने का मतलब क्या है कि प्रेम से परिपूर्ण मनुष्य, कि प्रेम से ही परिपूर्ण जो मनुष्य होता है वो देवताओं के समान दिखता है। कहने का मतलब क्या है कि द लव एंड लव द ह्यूमन फॉर्म डिवाइन, कि जब प्रेम मनुष्य के अंदर होता है तो उसका जो रूप है वो क्या है, ईश्वर के समान होता है, एज गॉड। वही मनुष्य ईश्वर के समान प्रतीत होता है। एंड पीस द ह्यूमन ड्रेस, और शांति यही मनुष्य का क्या है, आवरण है। कि जब शरीर में, चेहरे पर हर प्रकार से जो शांति दिखाई देती है तो यही मनुष्य की पोशाक, यही मनुष्य का आवरण जो है वो नजर आता है कि मनुष्य गुस्सेल है या शांति प्रिय है। ये उसके बॉडी लैंग्वेज को देख करके ही पता चल जाता है। यू कैन सी फ्रॉम ए मैन्स बॉडी लैंग्वेज दैट ही इज व्हाट काइंड ऑफ पर्सन, whether he is a very angry person or full of love, okay, full with peace. So again I'm repeating all these 4 lines, means this stanza. The poet is saying, for mercy has a human heart, because this is an important paragraph. After that these 2 next stanzas is very simple. For mercy has a human heart, pity a human face. The poet is saying that the mercy always comes from a human heart, क्योंकि दया का हृदय मानवीय होता है। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि दया मानवता से परिपूर्ण हृदय में जन्म लेती है। पीटी ए ह्यूमन फेस, चेहरे पर करुणा का भाव दिखाई देता है, करुणा हमेशा चेहरे पर नजर आती है। एंड लव द ह्यूमन फॉर्म डिवाइन, प्रेम भाव का देवीय चेहरा होता है, अर्थात कहने का मतलब है कि प्रेम से परिपूर्ण जो मानव होता है वही देवताओं के समान दिखता है। एंड पीस द ह्यूमन ड्रेस, और शांति सच्ची मानवता का बाह्य आवरण है, और शांति ही मनुष्य का बाहरी आवरण है। Then every man, now next stanza, then every man of every clime. Now the poet is saying that each and every man, whether he is in whatever place, clime means climate, and here climate means place. So the poet is saying here, whether a person who is living at any place, एक व्यक्ति चाहे वो किसी भी स्थान पर रह रहा हो, that prays in his dress, कि when he prays, जब वो प्रार्थना करता है, in his distress, अपनी निराशा में। तो यहाँ पर ये नहीं बताया गया कि कौन सी जगह का व्यक्ति जो है वो ईश्वर को प्रिय होगा। The poet is not saying that a person who is living in England or America or India or in whatever countries or in other countries really loves God. God loves him. No. A man who has all these 4 virtues, whether he is living in any place, he is always very near to God. वो हमेशा ईश्वर के नज़दीक जब वो होता है। तो इसीलिए कवि कहता है कि then every man, तब प्रत्येक व्यक्ति of every clime, चाहे वो किसी भी स्थान का क्यों ना हो, that prays in his distress, जब वो अपनी निराशा में प्रार्थना करता है, prays to the human form divine, तो वो किससे प्रार्थना करता है? वो प्रार्थना करता है एक ऐसे ईश्वर से जो इन गुणों से परिपूर्ण होता है, लव, मर्सी, पिटी एंड पीस। कि when a human form divine means a God who is full of love, mercy, pity and peace, he always prays from him. Okay, I am repeating this stanza again, what the poet is saying here. Then every man of every climate means a person who is living in every कंडीशन और इन एवरी इन वट एवर प्लेस, चाहे वो किसी भी स्थान के ऊपर रहता है, दैट प्रेज इन हिज डिस्ट्रेस, जो प्रार्थना करता है अपनी निराशा में, प्रेज टू द ह्यूमन फॉर्म डिवाइन। वो किससे प्रार्थना करता है? वो प्रार्थना करता है ह्यूमन, मनुष्य फॉर्म, जिसका रूप क्या है? देवता के समान है, अर्थात कि जो इन गुणों से परिपूर्ण होता है। कौन से गुणों से? लव, मर्सी, पिटी, पीस।
इन गुणों से परिपूर्ण होता है, उससे वो प्रार्थना करता है। अर्थात इन दिव्य गुणों से परिपूर्ण परमात्मा से ही वो प्रार्थना करता है। क्लियर? नाउ all and must love the human form. That's why the poet is saying that we all should love a human form, means we all should love each and every human being. हमें हर उस मनुष्य को प्रेम करना चाहिए, क्योंकि एक मनुष्य के अंदर ही ये क्या होते हैं, चारों गुण होते हैं। और जब एक मनुष्य में ये चारों गुण होते हैं तो वो मनुष्य ईश्वर तुल्य होते हैं, और ईश्वर हमारे पिता तुल्य होते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें हर उस व्यक्ति को प्रेम करना चाहिए जिसमें ये चारों गुण होते हैं, दया, करुणा, प्रेम, शांति, mercy, pity, peace and love. When all these virtues are in a human being, we should love that human form, that human being, because he is really a true child of God. He is really like a God, as a God. All men love the human form. So that's why the poet is saying that all men must love the human form. कि सभी व्यक्ति उस मनुष्य को जो है वो प्रेम करना चाहिए। इन हीदन मीन्स एथिस्ट, नास्तिक, चाहे वो नास्तिक हो तो भी हमें उससे प्रेम करना चाहिए। टर्क, इस्लाम का एक पंथ होता है, ये वी कैन से मुस्लिम्स, इट्स ए काइंड ऑफ रेस ऑफ मुस्लिम, कि एक इस्लाम का एक पंथ होता है टर्क, चाहे वो टर्क का हो। एंड ज्यू मतलब होता है यहूदी, कि चाहे वो कहीं भी रहने वाला हो, वो किसी भी स्थान का हो, वेदर ही इज लिविंग इन एनी प्लेस, वेदर ही इज एन एथिस्ट, चाहे वो एक नास्तिक है टर्क, और वेदर ही इज ए मुस्लिम एंड ज्यू, और या फिर वो क्या है, एक यहूदी है, चाहे वो कोई भी है। वेयर मर्सी, लव एंड पिटी ड्वेल, कि क्योंकि ईश्वर कहते हैं कि हमें हर व्यक्ति को प्रेम करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? बिकॉज द पोएट इज सेइंग दैट द प्लेस वेयर मर्सी, लव एंड पिटी ड्वेल, ड्वेल मतलब निवास करना, क्योंकि जहाँ पर दया, करुणा और प्रेम निवास करते हैं, देयर गॉड इज ऑलवेज ड्वेलिंग टू, तो वहाँ पर ईश्वर भी हमेशा निवास करते हैं। इसलिए ऐसे व्यक्ति को हमें प्रेम करना चाहिए। अर्थात कवि का कहने का मतलब क्या है, दैट द पोएट इज सेइंग हियर दैट द प्लेस or in a human being, if he possesses mercy, love, pity and peace, God always lives there. That's why we should love each and every human being, because the poet is saying in each and every human being has all these 4 virtues. I think you all have understood this poem very well. So we have done our poem, The Divine Image. Thank you.